द फर्स्ट थिंग आई टेल टू दैट पर्सन इज इवेंट हो रहा है, तू झूठ बोल रही है. दैट वॉज नॉट JNU, बट वॉट हैपन, जय श्री राम के नारे लग रहे थे. उस मैसेज में इंसिडेंट है कि आज से 6 महीने पहले बाईजूस का जयपुर ऑफिस बंद हो गया. रीज़न, वहाँ पर 2 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की मौत हो गई थी. सो मेरे स्ट्रैटेजी था, पानी में कूदेंगे, ड्राउन करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे. द टॉप मैनेजमेंट पीपल लाइक स्मोक 2 डब्बाज अ डे. लाइक नॉर्मली एक रील के लिए आज के टाइम पे 5-10 लाख भी मिल रहे हैं ब्रो. कुणाल शाह भाई, मैं बता रहा हूँ, ही हैज़ मोस्ट विजडम पर वर्ड. So, we're finally here. First of all, welcome Yogesh to the podcast. So, Thanks for having me. How are you feeling right now in Delhi? I'm feeling great, yeah. Delhi has been quite a surprise for me. I think so. I keep on traveling. I've traveled, like, I've done a 100 days India tour before, and I think so. There was a lot of incident that happened during those tour. I'll definitely discuss around it. But Delhi was a surprise because I thought it's a capital city. There's a lot of good facilities and even with good bad comes as well. I think so. हुआ ये कि दिल्ली आने के बाद मैंने ऐसी चीज़ें देखी, क्या देखा? ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए. सो इवेंचुअली आई थिंक सो पहली बार जब दिल्ली आया तो मैं हॉस्टल में रह रहा था. हॉस्टल में? हॉस्टल बेसिकली आप प्लेसेस जहाँ पे सोलो ट्रैवलर्स जाते हैं, रुकते हैं. सो इट्स कम्प्लीटली लाइक नॉट ऑन अ वेरी हाई नोट ऑल्सो, और बहुत लोअर साइड में भी चीप रहता है. कहाँ पे? विच प्लेस दिस वाज? अब वही सबसे बड़ी चीज़ हुई थी कि यार मैं एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा था, मैं लैंड किया एंड लाइक मैंने बोला भैया हॉस्टल जाना है. पूछा हॉस्टल कहाँ है, मैंने बोला मतलब मैंने सर्च किया नेट पे, फिर मुझे पता चला वो पहाड़गंज में. ओ भाई साहब. सो पहाड़गंज पहुँचे, फिर मुझे पता नहीं था कि है क्या ये पहाड़गंज, लोग जाना क्यों नहीं चाहते हैं वहाँ पे. सो इवेंचुअली पहाड़गंज पहुँचते हैं, हॉस्टल पे एंट्री करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं. सो आई एम अ पर्सन हु likes to take care of his body as well. So eventually I go for spas and everything, but I didn't know the spa means very different here. So I went to the guard. I just told him that yaar, I need a proper massage, okay, deep tissue massage. And he's like, cool. So there are 3 centers here, you can just go visit there. I visited the center and he's like, I just asked him that kya charges hai. He told me the charges and he asked the second question. तो भैया फुल सर्विस? मैंने बोला फुल सर्विस ये क्या होती है? And then he tried explaining me all those stuff that what happens, and then I realized that I am actually in a kind of red light area, and that Paharganj is filled with all these things. Okay. And that was a dreadful experience, flying from like Pune to Delhi, coming here and living in a red light area, which I eventually did not realize. So Delhi was much of a surprise. So उसके बाद गए यार, काफ़ी सारी जगह दिल्ली घूमी, but eventually यार मेरे को अनसेफ फील होने लग गया था. But Paharganj is usually very popular with these people who are foreigners. हाँ. Russians, Ukrainians. Correct. Like not in that sense. But who doesn't know Russians? Yeah, but like as in like if groups are coming from other countries, we see many people in Paharganj. It's like that. Lot of foreigners are there. Yeah. Paharganj has super good food. You have like this Chawla ke churchur naan. That's one of the famous spot there. But the problem with Paharganj is like nobody knows that it's actually a red light area. Every spa and every center out there is actually having some kind of those activities going on there. So eventually people do not know about it. When they stay there, they know about it. There's also a crime rate kind of thing. So there was a video that went viral near Paharganj itself. A Japanese girl on Holi. On it happened. Holi, yeah. On Holi, right? So that was the Paharganj area story. So that's what the thing is. When I saw those videos and these things happening, I'm like, मैं hostel में रहेगा, मैं नहीं जा रहा बाहर. मैं जाएगा तो ग्रुप में जाएगा. So this is eventually so I'll tell you how the Delhi thing started with me. So long back when I was in school, Nirbhaya thing happened, okay? So all know about the Nirbhaya thing. So what happened in the Nirbhaya episode is that I was so moved that I wrote a poem at that time. Cool. So I was very much inclined towards female feticide and all those things, and even one of my poems was published by CBSE, which was on female feticide. So I wrote about Nirbhaya as well. So eventually that incident always was inside me. दिल्ली आने के बाद ना वो सारी चीज़ें लाइव हो गई.
दिमाग में आया कि यार ब्रो लाइक दिस इज़ अ प्लेस वेयर इवेंचुअली इट हैपेंड एंड आई सर्टेनली रियलाइज दैट अगर एक लड़की के साथ एक लड़का है भी तो देर आर चांसेस दैट it's not always that you'll be able to protect her. Not safe. It's not safe. And I legit talk about this. I'm like, मैं इंडिया में इतना जगह ट्रैवल किया हूँ, मेरे को नहीं ख़राब लगता है बोलने में कि नहीं दिल्ली अनसेफ है. दिल्ली में बहुत चीज़ें बहुत अच्छी है. द मॉन्यूमेंट्स आर गुड, द मेट्रो इज सो गुड, वेल कनेक्टेड, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड फूड आउट हेयर. You know, there's a lot of opportunity. Gurgaon hai, Noida hai. You can stay here, chill around. It's a transit for the best places. Himachal, Rishikesh, Uttarakhand, Dehradun. So you have such good places. You can go from like here to Kashmir. So the thing is, it's a good transit and everything's so good. But people don't want to stay here. Like if I come from outside, I literally am scared. Scared as shit to stay. Even to this, I would like to add a thing. You know about North Campus, right? Yeah. Like how popular it is. Yes. And it is always considered supreme from South Campus. Correct. So the thing is that in North Campus, when I came, like in my first year, that time what happened was कि offline colleges start हुए थे after COVID. ठीक है. So what used to happen was earlier in those days, even if you go out in the campus, even at 2 in the night, still you will find people, even both girls and boys, sitting at footpaths, chilling around, eating momos, drinking tea and all that stuff. Right. But now if you go, it's pitch black. Like you don't see anything. Like barely anyone people is, you know, you barely find anyone. There are just 2-3 people walking and most of them are boys. And this has happened recently. Like I really miss that thing, you know, that Raat ka North Campus. I really do miss that. And when I ask some of my female friends or acquaintances, the reason is that it's not safe any longer. It's done. Yeah, I can feel so. So I went to a lot of campuses. So I came to Delhi just for few events, right? So I went to SRCC, LSR, Shivaji, and all those colleges, gave talks there. Eventually, we are developing a very good community. It's a creator-based community where you can actually travel with creators. You can meet creators. Lot of those stuffs are happening. But eventually यार DU का क्रेज मैं तेरे को बताता हूँ हुआ क्या. So this is the incident I would like to reveal. I would not take the name of the college. Cool. So is it a premier college or okay? It's a premium college. Okay. So North Campus. Yeah. सब बता दूँ because ये जब live होगा ना eventually, क्योंकि मैं इसके बारे में एक post डालने वाला था, फिर मैं नहीं डाला. So I'll tell you what happened. So these people called me in Delhi for a branding session, personal branding session. I was like, okay, cool. I'm like, I'll take the charge for flights and everything, and rest I'm good to go. You can just take care of my stays and everything. And they were like, no sir, थोड़ा सा low on budget चल रहे हैं. We can take care of the stays and everything, but flight will be a little difficult for me. I'm like, okay, cool. I'll take care of the flights. You take care of the rest of things. So okay, we decided. They sent me a mail. It was all done. ठीक है. Eventually, at the last moment, so I got a lot of other gigs also उसके बाद, ठीक है. But I kept the date of 16th blocked just because of that. I did not take any gigs on that day. They cancelled me 6 days ago. ठीक है. They did not send me a mail. It was a WhatsApp confirmation that sir, the event is not happening. And the first thing I tell to that person is, event हो रहा है, तू झूठ बोल रही है. And she was like, no sir, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? The event is not happening. It has been cancelled due to some technical reason. This particular thing. I'm like, ठीक है, we'll see that. तो मैं दिल्ली आया. 14 तारीख को मेरी इवेंट थी, SRCC event. That was a hit event. So we launched our club, 1% Better Club, which is all about creator economy, creator industry, where the audience also have a good say in it. So we'll discuss about this later. Yes. So what happened next is like 14th. Now it's 16th. Now I made some source. I went to that college. I sat in the VIP seat. The event was happening in front of me. Cool. So the event is happening. It's not cancelled. Now I saw that girl who invited me because I could recognize her by her WhatsApp, right? I told my teammate, get me a slot right now for 5 minutes. I'll go on stage impromptu. She was like, what? How can I get you impromptu? This is a fest going on. I mean, I don't care. You'll get me this or there will be a fuss out there. She got me a 5-minute thing on that particular college. Now, just to give you a hint about that college, that was not JNU, but what happened, Jai Shri Ram के नारे लग रहे थे. Okay. Part of DU only, na? Yeah. Okay. Part of Jai Shri Ram के नारे लग रहे थे. Inkalam Zindabad. All things were going on. The crowd was haywire.
I went on the stage. I was like, I looked into the eye of that girl and I started my shairis. I do shairis. So I started doing my shairis. I instigated the crowd like anything. So I just said this statement कि यार guys आप लोगों ने कभी love letter लिखा है? And the crowd was silent कि नहीं. तो मेरे को समझ में आ गया crowd love letter वाला नहीं है. Second statement I make is आप लोग love letter थोड़ी लिखते होगे. आप लोग तो लड़कियों को मुंह पे जाके बोल देते हो. And the crowd was like fire, shocking, पूरी आवाज हो रही है जोर से. So when I did that, I went to that girl after getting down the stage and told, what you did was unprofessional. Now you have to apologize for the same. कि इवेंट तो हो रहा है. आप झूठ क्यों बोले? आप मेरे को दूसरे रीजन से कैंसिल कर सकते थे. आपने झूठ क्यों बोला? And this is what I wanted to prove. Don't do it with other creators, otherwise I'll boycott. Make sure that every creator boycott your college. So eventually they wrote me an apology. They invited me for another gig, but I didn't go. So this is what has been my Delhi experience so far. Like it started on 16th of March. But can you imagine? Every city I went, I've extended my stay for 2-3 days. Delhi I came for 1 week. I've extended for 4 weeks. Like I'm staying here for almost 1 month now. So primarily there's a lot of opportunity, but the vibe is something that I don't like much. That's the difference. I can agree and disagree both. But however, let's move forward. Cool. I was going through your profile and I saw that you were in Byju's also. Yes. You're part of it. So if you're okay discussing it, like Byju's is known for many things, also controversies. Yes. So how was your experience overall there? Like what you did and how that, pivot your way to go into a personal business and that to in personal branding? So there's a pros and cons to everything, right? Okay. Byju's happened when I was in the low phase of my life. So eventually I was working with a creator और मेरा एक accident हुआ था जिसमें मेरी आँख फूट गई थी, left eye, ठीक है? तो it had a corneal tear. तो I could not work on computer for almost 6 months. But I took a chance because मेरे को पैसे की ज़रूरत थी और हमारी family condition अच्छी नहीं चल रही थी. So I was like ठीक है. So some girl referred me कि Byju's जैसे एक कंपनी है. तो मैंने बोला वो तो मुझे पता है, मुझे कॉल्स आते रहते हैं. बट कॉल्स एम्प्लॉई बनने के लिए नहीं आते, आप मेरा कोर्स ले लो उसके लिए आते. तो मैं ठीक है. तो आई इंटरव्यूड, रैंडम इंटरव्यू, मेरे को तो ज्वाइन भी नहीं करना था. मैं रैंडमली इंटरव्यू दिया. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड, गेव द सेकंड राउंड एंड गॉट सिलेक्टेड. सो इवेंचुअली मेरी ऑन बोर्डिंग हुई और ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट मेरे को बाईजूस ने दी थी. मतलब मैंने आज तक फ़्लाइट में नहीं बैठा था. मैं कैलकाटा से बैंगलोर की फ़्लाइट बाईजूस, दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. और मैं अपने सामने बाईजू रविंद्रन को देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं. He gave us a legit speech and I was so taken away by that speech, so powerful that वहाँ से जर्नी शुरू हुई. बट नहीं पता था कि चीज़ें आगे क्या पेव कर सकती है. तो I'll keep it very unfiltered because you want to know stories. So I flew back from Bangalore to Calcutta after my training. Calcutta was my base. तो होता ही है कि हम रूम में 27 लोग बैठे हैं, ठीक है, बातें चल रही है, इंडक्शन शुरू होने वाला है और अचानक से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और सबके हाथ कांपने लग जाते हैं. ऐसा क्या मैसेज था जिससे हम सब कांप गए? तो मैं मैसेज पढ़ता हूँ और उस मैसेज में इंसिडेंट है कि आज से 6 महीने पहले बाईजूस का जयपुर ऑफिस बंद हो गया. रीज़न, वहाँ पर 2 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की मौत हो गई थी. और वो मौत क्यों हुई? उसका रीज़न ये था कि बाईजूस का सिस्टम क्या कहता है कि आपको बाहर जाना है और आपको बाहर पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि यू कैन जस्ट गो आउट देयर फॉर HNS विच इज़ कॉल्ड हब एंड स्पोक. मतलब होता यह है कि आपको पेरेंट्स को विजिट करना होता है. तो लेट नाइट 2 BDS विजिट कर रहे थे, उनकी आँख लग गई गाड़ी में और इवेंचुअली एक्सीडेंट हुआ. तो ये सारे इंसिडेंट के बाद कुछ और कंट्रोवर्सीज हुई हॉस्पिटल में, जिसके कारण मुझे लगता है मैं बहुत डर गया कि क्या एम्प्लॉय का सही टेक केयर किया जा रहा है यहाँ पर. बट मुझे लगा इतनी बड़ी कंपनी है, देयर कैन बी सच इंसिडेंट्स. आई वॉज वेरी अफ्रेड. बहुत लोग की हालत ख़राब हो गई, 27 लोग रूम में बैठे हुए थे और वो मेरा ट्रेनिंग बैच था. यू वोंट बिलीव आफ्टर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज लाइक विद इन 3 weeks वो 27 लोग गॉट रिड्यूस टू 5 people. लाइक दोज मैनी पीपल क्विट with joining like within 3 weeks. Reduced to 5. 22 लोग उन्हें छोड़ दिया उस जर्नी में, बिकॉज ना तो वो प्रेशर ले पा रहे थे, ना वो कंडक्ट कर पा रहे थे चीज़ों को. सो दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. बट आई न्यू डैट मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मेरे को मैनेजर बनना है, मेरे को ट्रिप्स लेनी है, इंटरनेशनल ट्रिप्स लेनी है. बाईजूस ने मेरे को पहला फ्लाइट दिलाया था ब्रो. इट वॉज लेजिट अ गुड एक्सपीरियंस. आई वॉज लाइक नो, आई हैव टू गिव माई बेस्ट.
मेरे को बाईजूस एज अ कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इवेंचुअली मैंने बहुत मेहनत की. 1,20,00,000 का रेवेन्यू मैंने दिया बाईजूस को पहले साल में, लाइक माई सेल्फ. देन आई बिकेम अ मैनेजर एंड आई गॉट अ ट्रिप टू इस्तांबुल. मैं टर्की गया विथ माई टीम. बहुत प्यारी ट्रिप थी. वहाँ से लौट के कोविड हैपेंड. Now COVID was a little difficult. Still, like I gave 20 crore revenue in total, like in a span that I worked with Byju's, मेरी टीम के साथ. क्या खराब है क्या अच्छा है? अच्छा ये है कि आप फर्स्ट हैंड सेल्स बहुत अच्छा सीखते हो. That's very good. You learn a lot of things. You go to stranger. यार मेरे को किसी stranger के घर जाके 2 लाख रुपए लेने हैं ब्रो 3 घंटे के अंदर. That's legit a task. मेरा हाईएस्ट टिकट साइज था 2 लाख रुपये. मतलब मैं किसी के घर जा रहा हूँ, मेरे को जानता नहीं है और मेरे को कन्विंस करके वो ट्रस्ट बिल्ड करके उनसे पैसे लेने हैं. दो आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट. जब आप ये सीख जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. सो दिस वॉज लेजिट गुड अबाउट बाईजूस. यू लर्न ऑल दिस थिंग्स बट द प्रेशर वॉज इमेंस. इमेंस प्रेशर ब्रो. तो प्रेशर कुछ ऐसा था कि यार आपको नहीं पता कि आप क्या टाइम पे वहाँ जाओगे, क्या टाइम पे वापस वहाँ से आओगे. आप ऑफिस जा रहे हो बट आपको नहीं पता कि किस टाइम पे आपके ऑफिस की छुट्टी होगी. सो इवेंचुअली डैट यूज टू बी द प्रेशर. दिमाग में हमेशा चल रहा है, आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, है ना, अपने एसोसिएट्स के ऊपर. सो धीरे धीरे कैरेक्टर ख़राब होने लग गया था. आई बिकेम बैड एज अ पर्सन. सो बाईजूस गिव्स यू लॉट ऑफ मनी. मेरे को लगता है मैंने सारे अपने लोन बाईजूस के चलते ही क्या बोलते हैं चुका पाया. ठीक है. सो व्हाट आई फील, आई ऑलवेज टॉक टू माई मॉम रिगार्डिंग दिस. जो बाईजूस मैंने छोड़ दिया 6 महीने पहले, कि यार आपको क्या लगता है हाउ वाज बाईजूस. सो शी इज़ लाइक यार देखो वो तुम्हारी पहली कंपनी है जिसने तुमको बहुत ऊंचा लेके गया था वो कंपनी. तो मेरे को लगता है कि उसको तुमको ख़राब नहीं बोलना चाहिए. तो मैं बाईजूस को कभी ख़राब नहीं बोलता. आई रेस्पेक्ट द पीपल, द एम्प्लॉइज, द मैनेजर. मेरे को कोई मेरे सारे मैनेजर्स बहुत अच्छे थे. लाइक बी इट माई VP विक्रम सकूजा, बी इट रजत शुक्ला हु वाज माई मैनेजर, बी इट आदित्य दीपांग जो जिनसे आज भी मैं गुड़गांव में मिल के आया हूँ 4 दिन पहले. सो आई थिंक सो आई लव देम ऑल. बट एज अ होल द कंपनी हैज़ डिटोरिएटेड. The company systems have deteriorated. That's why we left. A lot of people left, and I have no problem talking about that on camera. That's fine. That has been the life for me. But I respect the company giving opportunities to fresher, which generally like not other people give. But inflated salaries इतनी ज़्यादा हो जाती है कई बार कि मार्केट में लोगों को अपनी वैल्यू नहीं पता रहती. उनको लगता है कि हाँ मेरे को 16, 17, 18 लाख मिल रहे हैं तो मेरे को मार्केट में भी मिल जाएगा. वो नहीं होता है. And that's what the difference is. So Byju's is this. How is the work culture over there? Is it like too hectic for you, or is it something which is tiresome, or is it something which is affecting your mental health? Lot of departments are there. Sales is the most mental health वाला जहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, एकदम घूम जाता है. बाकी सारे डिपार्टमेंट्स और ओके, लाइक बैंगलोर बेस्ड जितने डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक सेल्स ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हर सिटी में. बाकी सारे डिपार्टमेंट बैंगलोर बेस्ड है हेडक्वार्टर में, तो वहाँ फाउंडर्स बैठते हैं. सो इट्स वेरी हार्ड टू मेक दैट कल्चर. वहाँ पर कल्चर ऐसा है कि आप 7-8 बजे ऑफिस से निकल जा रहे हो. इवेंचुअली रीजनल ऑफिस में ये चीज़ें नहीं होती है. सो दैट्स वाई द सेल्स इज़ वेरी हार्ड. सेल्स इज़ वेरी टॉक्सिक कल्चर. ठीक है. सो दैट्स वाई पीपल जनरली लीव. सो पीपल हु आर एबल टू हैंडल प्रेशर वेल एंड फाइन, बट जो नहीं कर पाते इवेंचुअली थिंग्स डू नॉट गो फाइन फॉर दैम. Something ever happened with you, like one of your colleagues or even you yourself had to face something like a brutal mental block, or that phase? I tell you what happened with me. I was in Ranchi. I was posted in Ranchi. Ranchi was an underdeveloped city at that point. Ranchi को मैंने डेवलप करने की कोशिश की. ठीक है. तो मैं था और मैनेजर्स थे. तो लगभग 2021 की बात है. मैं एक अच्छे फेज से नहीं गुजर रहा था. पर्सनली भी फेज़ अच्छी नहीं चल रही थी. लाइफ में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, फैमिली के रिलेटेड हो. प्रेशर था और जॉब का भी प्रेशर था. तो शायद 25 जुलाई की बात है, 25 जुलाई 2021. मैं बैठा हुआ था अपने रूम पे और मैं ऑफिस नहीं गया था. मेरे मैनेजर का कॉल आता है, ऑफिस नहीं आए हो, क्या रीज़न है. तो मैं कि सर अच्छा नहीं लग रहा है. तो मेरे मैनेजर बोलते यार ऐसे तो नहीं चलेगा, काफ़ी बातें होती है. बट बैक ऑफ द माइंड मेरा चल रहा था कि आज मेरे को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है. आई एम नॉट गोना लिव एनी मोर. ठीक है. सो मेंटल हेल्थ इस कदर ख़राब चल गया था मेरा. मतलब सुसाइडल थॉट्स थे. तो मैं जाता हूँ अपने लैपटॉप पे बैठ के अपने माँ बाप को एक लेटर लिखता हूँ जिसमें सारे म्यूचुअल फंड्स एंड कहाँ हैं, लाइफ इंश्योरेंस कहाँ है. तो मैंने डैड को एक मैसेज भेजा था कि लाइफ इंश्योरेंस वाला मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ है. तो उनको थोड़ा सा आई डोंट नो हिंट मिला या नहीं मिला. तो मैंने वो डॉक्यूमेंट मंगाया. मैंने सब एक जगह करके एक मेल ड्राफ्ट करके उसको शेड्यूल कर दिया कि वो इस पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचेगा जब मैं मर चुका हूँगा. सो वहाँ से मैं निकलता हूँ लगभग 2 बजे रांची में अपने घर से, और निकलने के बाद मैं एक ऊबर लेता हूँ.
ऊबर लेके मैं गया था एक डैम। ये जो डैम था ये वहाँ का बहुत एक फेमस डैम है रांची का। तो वहाँ पर जाने के बाद हुआ ये कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सो इवेंचुअली आप लोगों के सामने नहीं मर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। सो मेरे स्ट्रैटेजी था पानी में कूदेंगे, ड्राउन करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो 7 बजे तक मैंने वेट किया, 4 बजे मैं पहुंचा, 7 बजे तक मैंने लेजिट वेट किया कि लोग जाएं। सो इवेंचुअली पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे को देखा भी। तो मैंने जब पुलिस वाले ने मुझे देखा तो मैंने बोल दिया कि मैं बगल वाले गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं शैबी ड्रेस था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे कपड़े तो छोड़ आए, सब कुछ तो छोड़ आया, मोबाइल एक बस मेरे पास। तो मैंने बोला बगल वाले गाँव को, तो उन्होंने मान लिया। सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इज़ वो चले गए। फिर जब सब खाली हो गया, अब मेरे मन में दुविधा चल रही है क्या करूँ, शुड आई गो एंड जंप और शुड आई लिव, क्या करना चाहिए, छोड़ के आ गया हूँ। तब तक लेटर जा चुका था, अब तुम बैकआउट नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारे माँ बाप को पता है तुम सुसाइड करने जा रहे हो, दो उनका फ़ोन नहीं आया है, फ़ोन तुम्हारा स्विच ऑफ है, तुमने सारे डेटा डिलीट कर दिए, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। एंड इवेंचुअली मैं जाके डैम में जंप कर गया। ठीक है, पता नहीं क्या एनर्जी थी या व्हाट हैपेंड टू मी दैट मैं वापस से उठा और मैं शोर के पास आ गया। मैं भीगा हुआ हूँ पूरा, ठंड लग रही है, मोबाइल भीग चुके हैं, आप फ़ोन नहीं कर सकते किसी को, और आपके मन में कॉन्स्टेंट थॉट चल रहा है आप घर जाओगे तो गाली पड़ेगी, आपकी इज्जत ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर रह के या तो वापस, हिम्मत नहीं आ रही थी कि वापस कूदूँ। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे वेट करने के बाद पुलिस आ गई मेरा मोबाइल ट्रैक करते करते, बिकॉज शेड्यूल मैसेज हुआ था, यहाँ से टावर ऑन था, तो उनको पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। पुलिस ने आके मुझे जीप में बैठाया और वो पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ पर मेरे ऑफिस के सारे लोग थे, मेरी इज्जत ख़त्म हो चुकी थी। आई एम लाइक दे आर थिंकिंग राइट नाउ टू मी एज समवन हु इज़ वेरी वीक। नो सिंपैथी, नो लाइक सिंपैथी तो है, बट उनको तो ये लगेगा ना कितना वीक बंदा है, सुसाइड करने चला गया, हम तो नहीं गए, ये क्यों गया। बट नोबडी अंडरस्टैंड्स यू एट दैट सिचुएशन। मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करता ना ब्रो। बात तो यही, हमें लीव लेने के लिए भी भाई झूठे रीजन देने पड़ते, रिलेटिव्स को मानना पड़ता है। कितना बार मेरे दादाजी मरे मुझे भी नहीं पता। मतलब उनकी डेथ एक बार हुई है, बट इवेंचुअली कितनी बार हमने उनके सेरेमनी के बारे में बोला होगा, इवन आई डोंट नो। तो यही चीज़ होती है सबसे बड़ी। तो एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कि ये पर्टिकुलर जर्नी में पुलिस स्टेशन बैठा हूँ, पुलिस में से पूछे आपने क्यों किया, तो यार मैं कैसे बता दूँ, मैं नम हूँ, मैं नहीं बोल सकता कुछ। आई डिड नॉट से एनीथिंग, दे इवेंचुअली लेफ्ट मी, आई वेंट बैक होम। बट ये गिल्ट इतना ज़्यादा हो गया था ना, मेरे ऑफिस ने मेरे को बोला कि आप ज्वाइन करिए 1 महीने 2 महीने बाद, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने बोला सेल्स हम आपको नहीं देंगे। बट मेरे को पैसे की भी ज़रूरत थी, बहुत फर्स्ट चल रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने घर पे फिर लाइफ एंड करने की कोशिश की। सो मैंने बीपी की गोलियां खाई 100, उसके बाद भी मेरी डेथ नहीं हुई। मैंने हैंगमैन रोप कैसे बनाते हैं वो सीखा। हैंगमैन रोप जो होता है जिससे शहीद भगत सिंह को टांगा गया, वो जैसे होता है, तो मैंने बनाना सीखा। मैं अपने घर पे छत पे गया, प्रोबेबली माई पेरेंट्स डू नॉट नो अबाउट दिस स्टोरी टिल नाउ। सो मैं अपने घर के छत पे गया और मैंने टांग दिया, और सो आई ट्राई टू हैंग माई सेल्फ मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और जब वो गला में जकड़ रहा होता ना, ऐसा लगता है यार क्यों मर रहा हूँ, और फिर वो ढीला हो जाता था या मैं कोशिश करके बच जाता था, तो मुझे लगता है कि यार नहीं यार मर जाते। इतना ख़राब फेस था, कोई मेरे को कुछ समझा नहीं पा रहा था। एंड इवेंचुअली आई विल टेल यू आफ्ताब, दिस हैपेंस विद एवरीबडी who are into mental health condition, they will laugh in front of you, you will never feel that they are in depression. ये सबसे ख़राब बात होती है कि आप समझ नहीं पाते हो। तो मेरे माँ बाप को पता था कि मैं ऐसे फेस से गुजर रहा हूँ, पर उनकी मैं कोई बात नहीं मान रहा था। तो दिस हैपेंड विथ मी। 6 महीने मेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स किए, बट मैं ज़िंदा बच गया इवेंचुअली। 2022 में आते आते मेरी जर्नी चेंज हुई। 2022 में मैंने अपने आप को वापस रीगैदर किया, अपने आप को वापस एक ऐसे फेज में लेके आया कि चलो यार ठीक है, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, लेट्स डू समथिंग अबाउट लाइफ। अगर मौत नहीं लिखी है तो कुछ अच्छा करो ना जीवन में जाके, कुछ लोगों के लिए सिखाओ लोगों को जाके कि क्या बेहतर किया जा सकता है, व्हाट कैन बी बेटर इन योर लाइफ। तो इवेंचुअली वहाँ से जर्नी चेंज हुई। बट आई विल टेल यू, बिकॉज यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, बहुत लोगों ने शायद ये सारी चीज़ें नहीं की होगी, बट सिमिलर इंसिडेंट्स विद अ लेसर इंटेंसिटी हो चुकी है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट बाईजूस, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ दोज टॉक्सिक प्लेसेस जहाँ पर चीज़ें होती है दोस्त। बिकॉज आप जब कॉर्पोरेट में काम करने जाओगे आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। उस पॉलिटिक्स के कारण मेरे को प्रमोशन नहीं मिला। मतलब लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट आफ्ताब, उसके बाद मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई किया ना, आई गेव अ वंडरफुल इंटरव्यू इन वन ऑफ द कंपनीज, और वो कंपनी ने मुझे सिलेक्ट भी किया।
बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर मेरे को रीज़न समझ नहीं आया कि इतना अच्छा कैंडिडेट, मैंने 2022 में बैक टू बैक इंसेंटिव्स लिया अपने कंपनी से, बाईजूस से, और फिर मैंने छोड़ा। तो यार इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद आप मेरे को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? तो इवेंचुअली मेरे को पता चला, बैकग्राउंड चेक में उनको पता चल गया मैंने सुसाइड कमिट किया था। दैट्स व्हाई दे रिजेक्टेड मी। आई एम लाइक व्हाट? जस्ट बिकॉज आई हैड दिस इशू। टॉप कंपनी? Yeah, this is also like almost about to be $1 billion company. People know about this company. That's why I'm not taking names, because I've not been into that company any so far. So I'm like, okay, that's fine. But this happened eventually. And what do you feel about this toxic culture? Especially Gurgaon is nearby, so I have to bring in Gurgaon here. Like, actually, I had done an internship in one of the companies. Thanks to God, thanks to Almighty, that the culture there was Good. decent only. But however, I was able to see people there who were working in, other offices. It was a co-working space. So what used to happen was, just adjacent to my office, there was another office, and again it was related to sales. Okay. Sales with share market. Oh. Then they have to tell all those numbers, all that stuff, right? Yes. So what used to happen when at 7 or around 6 the office used to get over, these people used to get out and they just directly head to Theka. As simple as that. Where is beer, bro? Where is beer, bro? Where is our whiskey and all that? Correct. And Saturday, Sunday तो वो fixed like कि उस दिन तो चाहिए ही चाहिए, उस दिन तो we want party. I mean, people are drinking, like drinking is a very separate thing, but in concern to these corporate people are taking drinking or this liquor and all that stuff just like water. It's Because just, they're very stressed. काफी stressed है. yeah, that's what I wanted to ask. Like, what do you feel about all this? So what whole happened thing? with me is, like, when I was at Byju's, 95% of my colleagues used to have cigarettes. ठीक है, मैं नहीं पीता था, एकमात्र मैं था सिगरेट नहीं पीता. I used to drink occasionally, socially, that was fine, but eventually drink से relief तो मिलता है bro. ठीक है, so that's why the culture is such कि आपको ये चीज़ लेनी पड़ती है. The top management people like smoke 2 dabbas a day of cigarette, and like what will be their health later on? They have a lot of money right now. क्या करोगे इस पैसे का? हेल्थ ही नहीं रहेगा, हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाएगा ब्रो कल. टेक एग्जाम्पल ऑफ राकेश झुनझुनवाला. यार देखो यार, उनके पास बहुत पैसे थे, बट इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई. कैसे? हेल्थ. अब इतने पैसे कहाँ गए? कोई फ़ायदा नहीं. आज अगर मैं तेरे को बोलूँगा आफ्ताब कि तेरे को वॉरेन बफेट से प्लेसेस बदलने, तो बदलेगा. वॉरेन बफेट इज लाइक ऑलमोस्ट 90 years. पैसे तो बहुत है. So will you try to, just change places with Warren Buffett? No, because you don't have time to spend that money. That's the part, bro. If you really count, you have like very limited number of weeks to live. हम लोग क्या करते हैं? उल्टा काउंट करें, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा. उल्टा काउंट करना. सोचो तू 80 साल जी सकता है, काउंट द नंबर ऑफ वीक्स टू यू हैव. तब तेरे को लाइफ की वैल्यू पता चलेगी. हम काउंट करें यहाँ से कि कितने साल जिएंगे. सोच, तेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल की है. अब देख कितने वीक्स बचे तेरे पास. Do a maths, like you can just do it like 50 into 52. कितने ही weeks है भाई. But isn't that a very pessimist sort of approach towards life? No, bro. That's what let you live the life कि every day is something that I will make big out of it. अदरवाइज तेरे को वैल्यू नहीं पता चलेगा टाइम का. बट वो मेंटल हेल्थ की उसमें उस साइकिल में भी डाल सकता है कि मैं खुद को हार्म करने की सोचूं या फिर ऐसा नहीं. क्यों हार्म करने की सोचोगे? जब आप ये सोचोगे कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेज है रहने के लिए. जब तेरे को पता चलता है तेरे को कैंसर हो गया, तो अपने लाइफ का हर मोमेंट बहुत ही बेस्ट तरीके से जीता है. तो ग्रैटिट्यूड शो करता है. यू नेवर शो डैट यार यू आर बैड टूवर्ड्स एनीवन. क्यों? यू विल ऑलवेज ट्राई टू बी गुड विद पीपल, बिकॉज तेरे को पता है यार 3 महीने बाद तो मरना ही है. I want people to remember me, which we generally don't do right now, right? क्योंकि हमें पता है कि यार ठीक है, eventually things will be figure out. ये चीज़ है. मैं बहुत fearless हो गया हूँ लाइफ को लेके, तभी मैं ऐसी बातें कर पा रहा हूँ. मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते, because I have had the worst experiences already. That's how things have been. तुमने कैंसर बोला, मुझे ब्रेकिंग बैड याद आ गया. Yeah. So makes sense to me, bro. Like I'll tell you a very huge hit of my life actually happened after this incident. कि यार जब मेरे को उस कंपनी ने रिजेक्ट किया ना, मैंने ट्रैवलिंग चालू किया. टोल्ड अबाउट 100 days इंडिया टूर. तो मैं 100 दिन के इंडिया टूर पे बैकपैक लेके निकल गया. तो लोग सोच रहे हैं 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा. इवेंचुअली मैंने क्योंकि ट्रिप कंटिन्यू की, पीपल स्टार्टेड लविंग माई जर्नी.
वो मेरी स्टेटस देख रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहा है ये, कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट कहाँ जाएगा। तो अचानक से 21वें दिन मेरी स्टोरी नहीं आई। पीपल बिकेम टेंस्ड कि स्टोरी क्यों नहीं आई, बट उनको पता नहीं हुआ क्या। तो हुआ ये कि मैं हॉस्टल्स में रुकता हूँ, तो मैं कोची से मुन्नार ट्रैवल कर रहा था। कोची से मुन्नार 125 किलोमीटर की ड्राइव होती है। तो मैंने एक गाड़ी उठाई कोची से, जो कि जूम कार भी नहीं थी, जो कि कोई माई चॉइस की कार भी नहीं थी। इट वॉज अ लोकल कंपनी रेंटिंग में द कार, प्राइवेट नंबर था। तो वो कार पुरानी थी, लेके निकल गया। 125 किलोमीटर स्मूथ ड्राइव में करके पहुंच गया। लास्ट के 50 मीटर जब मैं मुन्नार जा रहा था, मुन्नार हॉस्टल एक्चुअली 45 डिग्री स्टीप एक लोकी हिल पे, ठीक है। तो जब आप वहाँ पर जाते हो तो जाते वक्त क्या है कि यार एक गाड़ी आ रही थी सामने से, उस गाड़ी को जगह देने के लिए मेरे को बैक करना पड़ा। नाउ अगर तुम अपहिल पे अपनी गाड़ी बैक करोगे, गाड़ी पुरानी है, तो बहुत हाई चांसेस है कि उसके क्लच या ब्रेक्स फेल हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो गाड़ी बहुत पुरानी है, बहुत हालत उसकी ख़राब है। तो इवेंचुअली उससे पीछे आए। जब पीछे आके गाड़ी साइड की तो उस टाइम कुछ पता नहीं चला, वो गाड़ी पार हो गई। एंड व्हेन आई वाज गोइंग डाउन द ब्रेक्स फेल्ड। मेरे साथ गाड़ी में 3 और स्ट्रेंजर्स है, मैं हूँ। स्ट्रेंजर्स इसलिए क्योंकि उनसे मैं 2 दिन पहले कोची में मिला हूँ और मैंने उनको ट्रिप पे लेके आया हूँ, और मेरी हालत ख़राब। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कुछ नहीं सोच सकते हो गाड़ी का क्या करना है। राइट जाएंगे तो खाई में चारों मर जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो कोई एक मरेगा, बिकॉज अल्टीमेटली गाड़ी टॉपल करेगी या कुछ तो होगा गाड़ी में, गाड़ी ठुकेगी। मैं बोला चारों को मारने से अच्छा कोई एक को कुछ हो, देखा जाएगा जो होगा। लेफ्ट क्लिक, गाड़ी टॉपल कर गई और गाड़ी अपसाइड डाउन चली गई। अपसाइड डाउन गाड़ी जाने के बाद खून वून हर जगह। फिर अपन बाहर निकलते हैं, तो मैं पूछता हूँ सबसे कि सब कैसे हैं। बाकी तीनों ठीक थे, बट इवेंचुअली हुआ ये कि मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ एक्चुअली हो चुका है। मैं निकलता हूँ और मैं फिर सामने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको शो करता हूँ कि एक्चुअली आई हैव लॉस्ट माई राइट हैंड रिंग फिंगर। और मैं उनको दिखाता हूँ ऐसे कि यार ये मेरी रिंग फिंगर क्रश हो गई थी। इट वॉज फुल्ली क्रश्ड, लाइक ये ऐसे मुड़ी हुई थी। सो आई वॉज सो ब्रोकन, इट्स लाइक अब क्या होगा मेरी लाइफ का। एंड आफ्टर यू वोंट बिलीव, तब तक मेरे को कुछ रियलाइजेशन नहीं था। बाद में जाके मेरे को रियलाइजेशन हुआ, तो मेरे को हॉस्पिटल पे शिफ्ट किया गया। वो मेरे उंगली को जोड़ने की कोशिश की है, बट उंगली जोड़ी नहीं। फिर उन्होंने उंगली काट दी, स्टिच कर दी, और फिर उन्होंने बोला कि ये ऐसी रहेगी, ठीक है। कट टू दिल्ली। मैं एम्बियंस मॉल में था अभी 4 दिन 5 दिन पहले। दिस वसंत कुंज वन, गुड़गांव। तो मेरे एक दोस्त ने बुलाया था। तो लोग बोलते हैं ना कि ये उंगली जाने के बाद क्या होगा, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। तो मेरे को कोई चेंजेस लगा नहीं। मैं नॉर्मल तरह से बात कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन। होता ही है कि मैं बॉलिंग करता था। मेरे को दोस्त बोलता है चल बॉलिंग करने, एंड आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट डू बॉलिंग एनी मोर। आई एम अ राइट हैंडी, आई कैन नॉट डू बॉलिंग एनी मोर, दिस फिंगर इज नॉट देयर। एंड इवेंचुअली मेरे को लगता है अब मेरे को आगे जाके बहुत बार ऐसे रियलाइज़ होगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं शायद नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाट लॉस इज, बट आई नेवर गिव अप ऑन लाइफ। बहुत लोग यार छोटी छोटी चीज़ों पे गिव अप कर देते हैं। तो अब मैं इतना फियरलेस हो गया हूँ कि और इससे ख़राब क्या होगा। मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ, मेरे को बंजी जंपिंग करनी है, मेरे को सब करना है। आई एम फियरलेस। हो गई तो मौत हो गई, इट्स ओके। I have a life insurance. Eventually, my parents will be covered. I have like full planning of that. I just want to make sure that my life is very adventurous. छोटी हो life but अफलातून हो भाई। ऐसे डीमोटिवेशन टाइप नहीं लगता है कि यार क्या यार जहाँ भी ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है, या फिर यू नो लाइक ऑल पीपल फील दिस कि यू नो आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू एंड सडनली। तो तू मुझे पॉडकास्ट पे बुलाता अगर मेरी लाइफ नॉर्मल रहती। टेड टॉक में क्या बोलूँगा जाके, जोश टॉक में क्या बोलूँगा। That's the best part. That's how I take it. There's a positive and negative side of everything. When you have stories, you have a lot of things to tell. And it's okay. Life is filled with like lot of these things and rejection. एक बंदा है जिसने TED Talk किया था, जिया जियांग नाम है उसका। तो what he did is like he wanted to build a company like Microsoft. अब भाई Microsoft जैसी कंपनी बनाना बड़ी बात है भाई, ऐसे कैसे बना लोगे। तो उसको बहुत डर लगता था लोगों से बात करने में। तो उसने क्या किया, he started with this thing called 100 days of rejection. 100 days of rejection क्या होता है ये? तो बेसिकली इसको कहते हैं रिजेक्शन थेरेपी। कि सोच आफ्ताब, मैं तेरे को बोलता हूँ कि रैंडमली तू वसंत कुंज में किसी के पास जा और जाके बोल के मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। रैंडम पर्सन, स्ट्रेंजर रोड पे खड़ा है, क्या तेरे को 10,000 रुपये देगा? रैंडम स्ट्रेंजर नहीं देगा, राइट? नाउ दिस इज द ट्रिक।
कि वो क्या क्या था, वो एक रैंडम एक पर्सन के पास जाकर उससे $1000 मांगा था, तो उसको $1000 मिले नहीं, बट उसको उस बंदे ने क्वेश्चन पूछा तुझे क्यों चाहिए, और वो भाग गया वहां से. ही डिडंट इवन आंसर. द पॉइंट इज दैट वी आर सो स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन दैट वी डोंट आंसर द व्हाई. जरूरी नहीं है कि वो तेरे को नहीं दे, मे बी तू उसके वाई का ऐसा जवाब दे जो तुझे वो $10,000 दे दे. So if you come to me today and ask that यार bro I need 5,000 rupees for certain reason, maybe मैं पहले रिजेक्ट कर दूं, मैं तुझसे पूछूं कि क्यों चाहिए, and if the reason is so big enough I may give it to you. So this guy tried 100 days of rejection by doing some 100 things which people generally don't accept, and midway the journey he realizes that people have started accepting, क्योंकि वो इतना यूज टू हो गया रिजेक्शन को लेके, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल इतनी बढ़ गई है कि वो कुछ भी लोगों को बोल रहा है और लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, जबकि वो नॉन ऑर्थोडॉक्स है वो चीज़ें. एंड इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल टेड टॉक है, द 100 Days of Rejection बाय जिया जियांग. यू शुड वॉच इट. सो इवेंचुअली आई थिंक सो यार, जो डीमोटिवेशन की तुम बात करते हो, एक्चुअली मैं नो को भी देखता हूँ ना हमारे सेल्स में नो को बोलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. मेरे को एक बंदे ने रिजेक्ट किया तो मैं दूसरे बंदे के घर पे जाके कुछ बेटर बात करूंगा या कुछ बेटर करने की कोशिश करूंगा. तो लाइफ विल बी बिल्ड ऑन दोज रिजेक्शन. यू लाइक तू अपनी स्टोरी देखना, तू DU में आया, तू अगर आके यहाँ पर पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, या वॉट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यार मैं DU में आया उसके पहले मैंने लाइफ में बहुत रिजेक्शन फेस किए होंगे. लॉट ऑफ थिंग्स वुड हैव हैपेंड, बट इवेंचुअली वो चीज़ें मेरे लिए छोटी थी. मतलब इस उंगली वाले इंसिडेंट के बारे में के बाद मेरे को हर चीज़ें छोटी लगने लग गई. तो वो तेरे को रियलाइज नहीं हुआ इवेंचुअली, बट देयर विल बी थिंग्स जो तेरे को अभी नहीं पता चलता, अभी तू हंसता होगा उसके ऊपर, बट उस टाइम तेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. दिस इज हाउ थिंग्स हैव हैपेंड. मैं आज हंस रहा हूँ तेरे सामने इस इंसिडेंट के लिए क्योंकि मेरे को 4 महीने हो गए, बट मैं पहले नहीं हंसता. आई थिंक सो आई वुड हैव बीन सो सीरियस अबाउट दिस इंसिडेंट. So, like we were talking about this personal branding वाला thing. सो बेसिकली द थिंग इज, जैसे ना आजकल सब लोग समझते पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब वही अंकुर वारिकू, भाई मैं आऊँगा, आप मुझे अपनी ज़िंदगी के 10 दिन दीजिए, मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा. एंड इवन यू नो देयर वाज सम कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू दिस कि अश्विनी ग्रोवर वाज इन एन इवेंट एंड ही मेंशन्ड दैट. तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू अबाउट दिस पर्सनल ब्रांडिंग वाला यार. वो तो काफ़ी फनी चीज़ है जो अश्नीर वाली है. वहाँ पर बेसिकली अश्नीर वाले चीज़ में तो ये हुआ था कि यार वो इवेंट में गया था और कहता कि अंकुर वारिकू का और मेरा नाम साथ में मत लेना कभी भी, माँ बहन की गाली देनी दे दे बट वो मत करना. आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव सच प्रॉब्लम विद अंकुर वारिकू, बट दोनों अलग अलग है. लाइक अश्नीर और अंकुर दोनों इन्फ्लुएंसर है, बट दोनों अलग काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर है. बट पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसिंग की बात करो. पर्सनल ब्रांडिंग इज मोर अबाउट क्रिएटिंग एन अथॉरिटी ऑन इंटरनेट. ठीक है, जैसे कि वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी कि आप एक जॉब करने जब जाते हो, ठीक है, तो इन द जॉब जब आप हो, ठीक है, तब तो आपको टाइम नहीं मिलता ये सारी चीज़ें करने का. बट जब आप जॉब से निकलते हो, आप दूसरा जॉब ढूंढ रहे होते हो, आप चाहते हो आपको एक मार्कअप मिले, मीन्स यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा देन व्हाट द मार्केट इज पेइंग टू दोज पीपल. इफ यू हैव अ ब्रांड, पीपल विल बी विलिंग टू पे यू दैट. वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है. ठीक है, पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट पर्सनल ब्रांड है क्या वो समझ लेते हैं. इट्स बेसिकली योर फेस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लोगो, पीपल रिकग्नाइजिंग यू. यार कोका कोला को कोई नहीं जानता था, नेस्ले को कोई नहीं जानता था, वो इवेंचुअली ब्रांड बनी. आपका जब फेस एक ब्रांड के तौर पे देखा जाता है, आपके फेस को लोग रिकग्नाइज करते हैं, दैट इज व्हेन यू बिकम अ पर्सनल ब्रांड. बट हाउ डू यू मेक इट? यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स. यू हैव यूट्यूब, यू हैव इंस्टाग्राम, यू हैव ट्विटर, यू हैव लिंक्डइन. सो आई पर्सनली मेक माई ब्रांड ऑन लिंक्डइन बिकॉज वहाँ सारे प्रोफेशनल लोग हैं. इवेंचुअली नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होती है and you land a lot of opportunities. Simple है ना. There's a lot of podcasts that has come to me through LinkedIn. There are a lot of speaking opportunities that has come to me through LinkedIn. All my business comes through LinkedIn. मैं ट्रैवल कर पाता हूँ बिकॉज LinkedIn है मेरे पास. मैंने जॉब छोड़ी, मैं लगभग 1.5 लाख रुपए कमा रहा था मैंने का बायजूस में. इवेंचुअली छोड़ने के बाद मैं ऑलमोस्ट अपनी इनकम को रेप्लिकेट कर लिया हूँ. सो आई हैव कम लाइक समवेयर इवन टू द सेम इनकम ऑन अ मंथली बेसिस जस्ट थ्रू LinkedIn, which people generally don't know. LinkedIn is a gold mine, bro. Like it has a lot of people having a high paying capacity. You just have to tap into them and sell them one of your products, which product makes sense to them. It's as simple as that. And how does the personal branding wala aspect comes here? So personal branding से होता क्या है? ट्रस्ट डेवलप होता है. सोचो किसी को मैं बोल रहा हूँ मेरे को 50,000 रुपये देने, है ना.
तो वो 50,000 रुपये मेरे को तब देगा। अंकुर वारिकू की जब हम बात करते हैं, उसको लोग क्यों पैसे देने को तैयार होते हैं या क्यों उनके कोर्सेज बिक रहे हैं? बिकॉज ही हैज़ बिकम अ ब्रांड। ध्यान से अगर देखा जाए कि अंकुर वारिकू की जो लाइफ है उनमें भी बहुत सारे फेलियर्स रहे, बट लोग उनसे रिलेट कर पाते बिकॉज ही टॉक्स अबाउट फेलियर more than success. So the thing is, because people are able to relate to him, he's having 18 lakh people following him on LinkedIn. He's having like close to million of people following him on other platforms. That's why वो ट्रस्ट है, वो ब्रांड है, वो कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे बिकेगा। आई टेक अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। आपके दिल्ली में एक स्टार्टअप कन्वेंशन होने वाला था, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से 25 से 27 मार्च के बीच में था। उसकी एडवर्टाइजमेंट राज शमानी, अंकुर वारिकू, चेतन भगत और एक और इन्फ्लुएंसर ने की थी। इवेंचुअली उस स्टार्टअप कन्वेंशन में बोला गया था कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, अमित शाह आने वाले हैं, बहुत सारे बड़े एग्जीक्यूटिव्स आने वाले हैं, लगभग 9,000 एंजल इन्वेस्टर आएंगे, लगभग लाखों के स्टार्टअप्स वहाँ पर होंगे जो फंड किए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। होता यह है कि उनमें से कोई नहीं आता है, ना नरेंद्र मोदी आए ना कोई और। इवेंचुअली वो एक होक्स था जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू बहुत बड़ा बनाया गया, बट क्योंकि लोग अंकुर वारिकू को ट्रस्ट करते थे, क्योंकि लोग चेतन भगत को ट्रस्ट करते थे, राज शमानी को ट्रस्ट करते थे, दे गॉट स्वेड अवे। और हुआ क्या लास्ट में? वो फेल हो गया। तो अंकुर वारिकू या दूसरे इन्फ्लुएंसर ने क्या बोला, ये हमारी बस एक वीडियो कोलैबोरेशन डील थी, बाद में हमारे वीडियोस को यूज़ किया गया इन सब चीज़ों के लिए। सो देयर इज अ फ्लिप साइड टू इट एज वेल कि यार आप जब ब्रांड बना रहे हो ना, आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मैं खुद ब्रांड प्रमोशंस एंड कोलैबोरेशंस करता हूँ आफ्ताब, ठीक है, और वहाँ पर मेरे को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं एक ब्रांड को प्रमोट कर रहा था और उस ब्रांड काफ़ी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इवेंचुअली किसी ने आके कमेंट किया कि यार कल तक तो आप इस ब्रांड के बारे में बोल रहे थे, आप नहीं जानते, और आज आप बोल रहे हो कि आप इसको 6 महीने से यूज़ कर रहे हो। तो मैंने बोला आई बीन यूजिंग दिस ब्रांड, आई लाइक जो भी कमेंट्स होते हैं, आप हर कमेंट्स को अगर इतने सीरियसली लोगे तो फिर नहीं चलेगा। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट ऑन द फ्लिप साइड एज वेल। तो मेरे साथ भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक इन्फ्लुएंसर के साथ ही हो गई थी, इवेंचुअली हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। सो दिस हैपन्स। सो व्हेन यू बिकम अ ब्रांड ना, आप हर कुछ नहीं बोल सकते, आपको बहुत सोच समझ के फिल्टर करके बोलना पड़ता है। सो इवेंचुअली टॉप इन्फ्लुएंसर या फिर टॉप इन्फ्लुएंसर भी यार उनके तो हर वर्ड्स का पैसा मिलता है। नहीं द इन्फ्लुएंसर हु ब्लॉक्ड यू या फिर लिंक्डइन का टॉप था, टॉप 200 क्रिएटर में से एक था। तो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, अल्टीमेटली अगर वो लड़ाई हुई है और मेरे को मेरा सेल्फ एस्टीम ज़्यादा प्यारा है तो मैं नहीं देखूंगा वो चीज़। दैट्स व्हाट हैपेंड, लाइक आई एम ओके विथ इट। बट टुडे इन दिस वर्ल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ पर्सनल ब्रांड। गो आउट देयर, टेल योर स्टोरी, ठीक है। एवरी पिक्चर ऑफ योर इज अ स्टोरी। अगर आपको लग रहा है आपको कंटेंट नहीं लिखना आता, आप अपना मोबाइल उठाओ, एक रैंडम पिक्चर निकालो जब आप आगरा गए थे, आप हिमाचल गए थे, सोचो वो पिक्चर हुई कैसे। आप अपनी हिमाचल की ट्रिप के बारे में बता सकते हो, आपने कैसे पैसे इकट्ठा किए हिमाचल की ट्रिप करने के लिए, एंड द यूथ्स विल बी इंस्पायर्ड। सोचो आप आफ्ताब, अगर आप, मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम में कोई बच्चा है जो 18 साल की उम्र में एक ट्रिप कर रहा है और वो उसके बारे में जाके लिख रहा है कि उन्होंने पैसे कैसे सेव किए, तो पीपल विल बी इंस्पायर्ड। इट्स जस्ट दैट पीपल डू नॉट गेट स्टार्टेड। अब मेरे को वही लगता है कि मैंने आज से 6 महीने पहले शुरू की थी आफ्ताब, ये जब मेरे को रिजेक्शन मिला था उस कंपनी से कि मैं आपको नहीं ले सकता। उस बाय द वे उस कंपनी ने मेरे को जॉब ऑफर किया उसके बाद सेम रोल पे, मैंने रिजेक्ट किया उस कंपनी को। सो इवेंचुअली दिस इज, आई एम लाइक द ठग वर्जन ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो समटाइम्स, कि भाई तूने मुझे रिजेक्ट किया, मैंने तुझे रिजेक्ट किया, नाउ वी आर इवन। सो मैंने जब लिंक्डइन शुरू की ना, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। मे बी तेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हो कि यार योगेश क्या चीज़ से शुरू करें, what should we write, what should be the niche? It's okay, write anything. We don't have like anything figure out. किसी को हर कुछ नहीं पता होता है। Take your time, start writing, improve the content, improve the writing. जब तेरे को पता चल जाएगा तेरी ऑडियंस क्या चीज़ तेरे लिए पसंद कर रही है, बस उसके बारे में लिखना शुरू कर दे। The writing thing that you are talking about, don't you think ChatGPT ने इसकी prompt solve कर दी? Good question. So ChatGPT, यार एलन मस्क ने एक बात कही थी, you will not be replaced by AI, but you will be replaced by people who use AI. True. तो बहुत सारे लोग हैं जिनको चैट जीपीटी के बारे में पता नहीं है अभी भी। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं चैट जीपीटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं यूज़ नहीं करना चाहता। और चैट जीपीटी में आपको 1% ही ऐसे लोग मिलेंगे जिनको प्रॉम्प्ट्स अच्छे लिखने आते हैं, विच इज कॉल्ड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
तो जिनकी प्रॉम्प्ट लिखने की एबिलिटी बहुत अच्छी है वो तो बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं. तो इवेंचुअली मेरे को पता है मेरी वो एबिलिटी अच्छी है या मेरे दोस्त की अच्छी है, तो हम तो कर लेते, बट बाकी लोग नहीं कर पाते. तो डेफिनेटली अब मेरे को कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं चाहिए, मेरे को कंटेंट राइटर नहीं चाहिए मेरे लिए, वो काम चैट जीपीटी कर देती है. अगर आप बोलते हैं प्लेजरिज्म की बात, उसमें कोई प्लेजराइज चीज़ नहीं है. अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छा लिख रहे हो तो ओरिजिनल कंटेंट आपके पास आ रहा है और आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके. तो दैट्स कंप्लीटली फाइन. और क्या दिक्कत है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि एआई से चीज़ें अगर फास्ट हो रही है तो आपको क्या दिक्कत है. हाँ, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, हाँ फ्रीलांसर्स को दिक्कत हो रही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस. एक भाई कोई चीज़ जाती है तभी तो नई चीज़ें आती है. एवोल्यूशन में तो कितनी चीज़ें चली गई आपके भाई, नोकिया ख़त्म हो गया है एवोल्यूशन में, कोडैक ख़त्म हो गया. पहले हम भाई पिक्चर खरीदे करते थे जाके रील में, वो कोडैक से जाके, याद होगा तुम्हें, फोटो वैसे खींचते थे. हम 90s के बॉन्ड किड है तो हम तो यही करते थे. आज कोडैक कहाँ है, कहीं नहीं है. दैट इज द डिफरेंस. सो इवोल्यूशन में यही होता है कि कुछ चीजें जाती है, कुछ नई चीजें आती है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट इवेंचुअली. दैट्स व्हाट इट इज. चैट जीपीटी का ना एक ड्रॉबैक है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फैक्चुअल, टू मच फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चैट जीपीटी. कुछ हद तक शायद कर लो, लेकिन द थिंग इज, द ओनली वन थिंग दैट चैट जीपीटी डजंट हैव एंड वी हैव, दैट इज एक्सपीरियंस. चैट जीपीटी इज लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी जिसके अंदर सब कुछ है. सब कुछ है, उसके पास दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन है, इट कैन गिव यू एवरीथिंग, बट उसके पास ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं है यार. तो तुम ये करो ना यार, देखो उसमें 2021 तक की डेटा है पहले तो, और GPT-4 जो आया उसमें शायद सितंबर 2021 तक की. GPT-4 स्लो है, पेड वर्जन है बट स्लो है. तो मेरे दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो, तो मैं देखता हूँ, मैंने यूज़ किया, मेरे को उतना कुछ खास पसंद आया नहीं वो, बट इवेंचुअली बहुत अच्छा वो और इम्प्रूव होगा, स्पीड इम्प्रूव होगी तो अच्छा लगेगा. बट यार सी द पॉइंट इज हेयर आफ्ताब कि यार आप इंजीनियर कर सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू एग्जैक्टली कि आप जो नया डेटा है उसको फीड कर दो और बोलो यू लर्न दिस डेटा. तो मैं चैट जीपीटी को पहले बुक पढ़वाता हूँ, मैं उसको कॉपी पेस्ट करके डेटा देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि पढ़, ये नया डेटा है, और फिर उससे सवाल पूछता हूँ. समझ रहे हो. सो यू हैव टू फीड दैट डेटा टू इट. उससे क्या होगा, तो उसको सिखा रहा है और फिर तो उससे सामान ले रहा है. ठीक है. सो दिस इज वॉट दैट विल वर्क इन चैट जीपीटी. बट देख, आई टेल यू समथिंग हाउ कॉन्टेंट हैज चेंज थिंग. एग्जाम्पल देख ले, आज मैं दिल्ली में हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं यहाँ से हिमाचल जाऊँगा, मैं ऋषिकेश जाऊँगा, मैं 50 जगह जाऊँगा. कॉन्टेंट का गेम ये है कि आज से कोई इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा. टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट होने का रीज़न भाई कोविड के बाद जो सबसे मेन रीज़न है वो है रील्स. That's one thing. कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि इंस्टाग्राम रील नहीं होती तो इतना टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट हुआ ही नहीं होता. मेरे को पता है कि ऋषिकेश में बंजी जंपिंग होती है क्योंकि मैंने वो रील देख रखी है. मेरे को पता है कि जाकुर एरोड्रोम में बैंगलोर में फ्लाइंग हो रही है बिकॉज मैंने देखा इंटरनेट पे एक जगह यूट्यूब वीडियो कि एक बंदा फ्लाई कर रहा है 3700 रुपये दे के, 10 मिनट की फ्लाइट उसको उड़ाने मिल रही है. किसी को नहीं पता भाई. तो द थिंग इज कि वी आर ट्राइंग टू नो दीज थिंग्स एंड गो ओवर दोज प्लेसेस एंड spend some money. That's what the thing is. But nobody talks about it. कि जो रील से ये कर क्या रही है. इकोनॉमी बूम तभी हो रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री तभी इतनी बढ़ रही है बिकॉज लोगों को एक टेम्प्ट आ जा रहा है, यार कश्मीर कितना सुंदर लग रहा है, सोलांग वैली कितना अच्छा लग रहा है, चल दिल्ली चलते, दिल्ली से यहाँ जाते. भाई मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, हर दिन फिल्ड रहता है ब्रो. एवरी सिंगल डे एवरी रूम इज़ फिल्ड. 8 वाले डॉम फिल्ड है. मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे ब्रो, हॉस्टल आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले फेमस हुआ है और आज एक रूम्स खाली नहीं होते वहाँ पे. सो हाउ इज़ दिस चेंज कमिंग? ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्टेंट. कॉन्टेंट विल बी अ गेम चेंजर इन द कमिंग टाइम. आपकी कॉन्टेंट अच्छी है, लोगों को समझ में आ रही है, यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ. सेम थिंग वी आर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट अबाउट. आई थिंक सो दैट्स व्हाट हैपेंस, यू नो, पीपल स्टार्ट रेजोनेटिंग टू योर कॉन्टेंट एंड दे स्टार्ट बिलीविंग इन यू. So if I have to just tell to the, you know, people out there who are in the college, I just tell them one thing, that if they're in 20s, make mistakes bro. बहुत mistakes करो. मैंने बहुत mistake किए bro. I have legit blacked IPL tickets. I have posted about this on internet. तो मेरे पापा ने मैं बोला था 3rd year में मैं तुझे पैसे नहीं भेज रहा हूँ. मैं क्यों? तुझे CA नहीं बनना, तुझे पैसे उड़ाने मैं नहीं भेज रहा. तो मेल ईगो पापा का भी आ गया, मेल ईगो मेरा भी आ गया. मैं भी बोल दिया घर नहीं आऊँगा. तो पैसे कैसे कमाएंगे भाई? तो आई लेजिट स्टार्टेड सेलिंग IPL टिकट्स टू अर्न मनी एंड देन आई मेड मनी एंड पेड माई रेंट. स्टेड इन कोलकाता फॉर मोर फ्यू डेज. देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद IIM Calcutta एंड लॉट ऑफ दो साइड प्रोजेक्ट्स टू गेट सम मनी. तो भाई एक्सपेरिमेंट विथ योर लाइफ, इट्स ओके. भाई तू बेचना सीख रहा है, कितनी अच्छी बात है. आज तू अगर फॉरेन कंट्री में जाएगा
वो डोमिनोज में देखता है वो स्टाफ जो रहते हैं हमारे उल्टे साइड काउंटर में, मैं तेरे को आफ्ताब बोलूंगा तो यहाँ पर आके वहाँ पर काम करते, तेरी फैमिली तेरे को अलाउ नहीं करेगी, वो बोलेगी यार ब्रो आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, तुझे क्यों जाके वो काम करना है, बट तेरे को पता है मेरा सपना है वो करना, मैं लेजिट जाके काम, मैं घर के कारण नहीं करना चाह रहा कि कोई मेरे माँ बाप को जाके बता देगा, बट मेरे को करना है, उस साइड रहना है, फील करना है हाउ डज इट फील। एंड फॉरेन में ये बहुत अच्छा लेजिट जॉब है, फॉरेन में आप खराब नहीं फील करते हो उसके बारे में, आप अच्छा फील करते हो, you feel so good, people come to you, give them drinks, you have a talk with them and everything so good. That's the mentality I want to change. इंडिया में ये जो मैंने 1% बेटर क्लब शुरू किया है ना, इसका बहुत बड़ा रीज़न ही यही है कि यार 1% बेटर क्लब मतलब 1% अपने आप को हर दिन बेटर करना। तू तो यही सोचता होगा, आज अंकुर वारिको की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया। आज से तू 5 साल पहले उसकी बात नहीं करता, बट तूने ये नहीं देखा कि वो 5 साल पहले जो फेमस हुआ है उसके पहले उसने कितनी मेहनत की। He tried to improve himself 1% every single day to get to the place he is in right now. आप कितना भी हेटरेट दिखाओ उसके टूवर्ड्स के, भाई उसके एड्स हमेशा आते हैं, बट कितना सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल डेवलप किया उसने, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो खुद बात कर रहा है उसके बारे में कि यार मैंने डिजिटल मार्केटिंग में इतना स्पेंड किया, उससे मेरे इतने पैसे बने। सीखो ब्रो, दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न। कैसे विदाउट एनी फिजिकल ऑफिस लाइक ही कैन मेक crores ऑफ मनी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्रांड। और अश्नीर तो बोलता ही है ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ज़्यादा कोई बड़ा पैसा नहीं है। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में कोई कमाता है तो शरण कमाता है, शरण हेगड़े, फाइनेंस विद शरण। 2 मिलियन फॉलोअर्स है, धोनी के साथ ऐड में आया है अभी। सोचो कितने पैसे मिलेंगे उसको उस एक रील के लिए। लाइक नॉर्मली एक रील के लिए आज के टाइम पे 5-10 लाख भी मिल रहे हैं ब्रो। दिस इज़ द हाइट्स, 5-10 लाख रुपए एक रील के लिए अच्छे इन्फ्लुएंसर को, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। जुपिटर ऐप सुना होगा ना, बहुत एड्स आते हैं आजकल। ये जुपिटर ऐप पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बेस्ड है। इसकी हेडक्वार्टर्स है शायद बैंगलोर में, मैंने इसकी ऑफिस देखी हुई है। बट सोचो, तुमने आज तक टीवी में एडवर्टीजमेंट देखी है इसकी? इसके सारे सेल्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से होते हैं। दैट्स व्हाट पर्सनल ब्रांडिंग डज टू यू, दैट्स व्हाट पर्सनल ब्रांडिंग विल बी द फ्यूचर। पीपल विल बिलीव मोर इन पीपल एंड नॉट बिजनेसेस। पीपल विल फॉलो पीपल। मैं तेरे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, तेरी कंपनी पे नहीं। पहले मेरे को तेरे ऊपर विश्वास होगा, पर फिर मैं तेरी कंपनी पे विश्वास करूँगा। डोंट यू थिंक इट इज वैलिड एवरीवेयर, नॉट ओनली बिजनेस? मतलब यार पॉलिटिक्स में देख लो, चलो नाम नहीं लेते हैं। हाँ दिल्ली है, नाम लेना भी नहीं चाहिए तो नाम नहीं लेते हैं, बट इफ देयर इज वन पॉलिटिकल पर्सन, दिस बिग लीडर, उसके पीछे ही भाई सब लोग आ रहे हैं। हाँ, तो वो तो मार्केटिंग वहां से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, हर जगह है ब्रो। सेल्स इज एवरीवेयर, मार्केटिंग इज एवरीवेयर। बट एक चीज़ को सोच के देखना कभी भी इस डायरेक्शन पे कि छोटा सा एग्जांपल ये है कि बिल गेट्स को तुम जानते होगे, तुम माइक्रोसॉफ्ट को भी जानते हो, बट तुम जाके इंटरनेट पे कहीं भी चेक करो, बिल गेट्स के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट से। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एज अ प्रोडक्ट इज़ अ सुपर प्रोडक्ट। हर घर पे आज के टाइम पे, चलो एप्पल आ गया तो थोड़ा सा ज़्यादा दबदबा बन गया, अदरवाइज विंडोज़ था सबके पास। बिल गेट्स के 36 मिलियन फॉलोअर है लिंक्डइन पे, और माइक्रोसॉफ्ट के 18 मिलियन है। ट्विटर पे बिल गेट्स के 62 मिलियन फॉलोअर्स है, माइक्रोसॉफ्ट के 11 मिलियन है या 12 मिलियन है। तो मतलब बिजनेस, तुमने एक बात मुझसे पूछी थी कि यार एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पहले अपना ब्रांड बनाओ फिर अपने प्रोडक्ट बेचो। आप समझ रहे हो क्यों? तुम्हारा ब्रांड जब बन जाएगा, तुम्हारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बिकने शुरू हो जाएंगे। आज ये जितने लोग हैं शार्क टैंक पे जो आते हैं, अमन गुप्ता, नमिता, तुम बात कर लो शुगर कॉस्मेटिक्स की, क्या नाम है उसका, फॉरगॉट व्हाटएवर द नेम वाज। सो ये हो गए, फिर अमित जैन हो गया, ये जो आ रहे हैं, इनके कंपनीज के बारे में शायद हम जानते थे बट इतना नहीं जानते थे। There is also this conspiracy कि ये कंपनीज लॉस में चल रही थी, हाँ, ये कंपनीज लॉस में चल रही थी, नहीं चल रही है। देर आर लाइक प्रॉफिटेबल कंपनी के नाम करो तो मेरे हिसाब से शादी.com एक होगी जो प्रॉफिटेबल होगी और बोर्ड प्रॉफिटेबल है। उसके अलावा सारी कंपनीज लॉस में ही चल रही है। पीयूष बंसल का मे भी हो सकता है प्रॉफिटेबल हो। देख, सबसे ज़्यादा अगर स्टार्टअप इंडस्ट्री में मैं किसी को रिस्पेक्ट करता हूँ तो भाई वो तो नितिन कामत और निखिल कामत है, जिसने जीरोधा कंपनी बनाई है। क्योंकि जीरोधा जो कंपनी है वो बूटस्ट्रैप्ड है। सो बूटस्ट्रैप्ड का मतलब होता है कि जो अपने पैसे से आप बनाते हो, फ्रेंड्स फैमिली से लेके, आपने कोई मार्केट से लोन नहीं उठाया, आपने कोई पर्टिकुलर मतलब शेयर्स इशू नहीं किए, ना आपने इन्वेस्टर्स से वीसी से पैसा उठाया। ठीक है, दैट इज नो राउंड ऑफ फंडिंग, यू जस्ट हैव द फैमिली मनी एंड द रिलेटिव मनी केप्ट एंड यू हैव स्टार्टेड द कंपनी।
और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही है। सो वो लोग रेस्पेक्ट मेरी अर्न करते हैं। बट मेरे पर्सनल रोल मॉडल कुणाल शाह है, द फाउंडर ऑफ क्रेड। कुणाल शाह भाई, मैं बता रहा हूँ, ही हैज़ मोस्ट विजडम पर वर्ड। मतलब वो उसके मुंह से एक चीज़ें जो निकलती है या दो चीज़ें जो निकलती है वो ऐसी निकलती है ना कि that will blow your mind. He constantly reads, he constantly consumes content, and that's what make him so informative. अब ऑब्वियस बात है, कुणाल शाह ऐसे कहीं भी नहीं जाएंगे. जनरली ही हैज़ बीन टू आई थिंक सो रणवीर्स पॉडकास्ट एंड राज पॉडकास्ट बिकॉज दे हैव लाइक अ लेजिट गुड पॉडकास्ट राइट नाउ. बट हाँ, लाइक सही कहा, लाइक दोस्त कास्ट, आई लव दैट गाय. दैट गाय इज लाइक much better in terms of the content he's delivering. I'm like fine with it. बट हाँ ठीक है, पॉडकास्ट हैज स्टार्टेड कमिंग, आई एम ग्लैड यार. लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं इस चक्कर में. लोगों को थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ रही है कि कैसे चीज़ें करनी है, कैसे नहीं करनी है. तो दैट्स व्हाट इट इज़. एंड यहाँ से ना एक मैं लिंक्डइन के बारे में बात करता हूँ थोड़ी सी. जैसे दिस इज फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है. तो व्हाट हैपेंस इज लाइक इफ़ आई क्रिएट अ लिंक्डइन अकाउंट, अभी तो मुझे साल भर 1.5 साल हो गया मुझे लिंक्डइन पे. तो इफ़ आई गो ऑन लिंक्डइन डायरेक्टली, मतलब एज अ स्टूडेंट, द थिंग इज दैट इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर एकदम से आएगा ना. some person is doing their online sort of certification from dash course or from dash college, or someone is doing an internship या ऐसी. तो everything is so much, you know. एक होता है इंस्टाग्राम, उसमें तो लोग अच्छे दिख रहे हैं, एस्थेटिक्स है भाई देखो और वही सारी चीज़ें चलती रहेगी. अब लिंक्डइन में जब तुम जाते हो ना, तो तुम्हारी प्रोफेशनली उतारी जाती है सॉर्ट ऑफ, इफ आई विल बी लाइक रियली रॉ हियर. करेक्ट. तो दैट थिंग इज लाइक वेरी अनोइंग, एंड ऑब्वियसली अच्छा भी है पर अनोइंग भी है कि यार तुम लोगों को देख रहे हो करते हुए, और लोग खुद ही फाउंडर बन रहे हैं यार. लोग कुछ खोला नहीं है, कुछ करा फाउंडर नहीं बन गए. हाँ, फाउंडर बन गए. बट यार पीयर प्रेशर वाला चीज़ तो आई रियली वांटेड टू शेयर इन लिंक्डइन पे बहुत होता है यार. यार देख क्या है ना, इसको तो इस तरीके से ले सकता है कि यार तू लिंक्डइन पे गया है, तूने लिंक्डइन पे शायद कंटेंट बनाना चालू नहीं किया, तो 1.5 साल से वहाँ पर है. कोई पर्सन है जो कंटेंट बना रहा है, तो तू जिस दिन चालू कर रहा है वो तेरा डे 1 है, और जिस डे पे वो खड़ा है वो डे 100 है उसका. ठीक है. तो पहली चीज मैं पीयर प्रेशर का यही बोलूंगा कि डोंट कंपेयर योर डे 1 विद समवन्स डे 100, विच पीपल जनरली डू. लोग क्या देखते हैं कि भाई ये भी मेरे कॉलेज से. एग्जाम्पल यार मैं बताता हूँ कि एक बंदा है SRCC का, जिसके थ्रू SRCC का मेरा इवेंट हुआ था 14th को. तो उसकी 23,000 की फॉलोइंग है. ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट. ठीक है. और बहुत लोगों की नहीं है. तो अगर वो आते ही इस बंदे को देखता है और कहता है यार ये तो सेम कॉलेज से, सेम ईयर से, मेरे क्लास में, मेरे बगल में बैठता है, हाउ इज सो मच बेटर, और उसको सोच के वो पीयर प्रेशर में आ जाता है, तो फिर वो कभी नहीं बना पाएगा कंटेंट. तो वो उसका डे 100 है ब्रो, तेरा डे 1 है. लाइक बी लाइक द डे 1 गाय, नॉट द डे 100 गाय. डोंट ट्राई टू बिकम दैट. दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट पीयर प्रेशर. सेकेंड, टेक एडवांटेज ऑफ इट. अगर तेरे को प्रेशर आ रहा है, मतलब यार तेरे अंदर एक एम्बिशन बिल्ड हो रहा है कि यार यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. Take that advantage and start doing certification courses yourself. I think so. LinkedIn is a place where the student के तो 6 महीने की प्रीमियम फ्री मिलती है bro. If you have a student ID, you can get a 6 months premium for free. So take that premium, do some courses and make a legit brand out of it. Because ultimately क्या है ना कि मैं सबको ये सिखाता हूँ, मैं एक legit trick तेरे को बताता हूँ कि कैसे jobs land की जाती है. So अगर तेरे को तेरे कॉलेज में से जॉब नहीं मिल रही है और तेरे को एक बहुत अच्छी प्यारी कंपनी में जॉब चाहिए, सो देयर आर 3 ways टू डू इट. ठीक है. नंबर 1 वे इज द वर्ड क्लाउड वे. वर्ड क्लाउड क्या होता है? आपको करना क्या है, सोचो तुमको एक लेजिट कंपनी, एग्जांपल लेते हैं गूगल में तेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब चाहिए. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सारे जितने जॉब डिस्क्रिप्शन है 20, 30, 50 उसको कॉपी करेगा और एक वर्ड फाइल में पेस्ट कर देगा. वो सारे एक जगह पेस्ट हो गए, 50 जॉब डिस्क्रिप्शन. सो जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपको जॉब में क्या क्या करना है. नाउ यू हैव टू कॉपी दैट जॉब डिस्क्रिप्शन, गो टू अ वर्ड क्लाउड जनरेटर, फ्री वर्ड क्लाउड जनरेटर तेरे को गूगल पे मिल जाएगा, टाइप करना और वहां उसको पेस्ट कर देना है. होगा क्या इससे? यू विल गेट द 5 words विच आर अपीयरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन दैट 50 जॉब डिस्क्रिप्शन. दैट मीन्स कि इस कंपनी को प्राइमरीली ये 5 कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. What you have to do, take those keywords, put it in your LinkedIn account. CV. LinkedIn is your new resume anyway. So you just have to put that in strategic location. तब देख तो search appearances में आने लग जाएगा उस कंपनी के. You will start getting messages from those companies. And this has worked for my people. I've done it for a lot of people and this has worked. This is number 1 way. Second way, लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन पे जाके एक जॉब सेक्शन होता है, वहाँ इजी अप्लाई करके एक बटन होता है, उसको दबा देते हैं.
और वो सोचते हैं कि कल जॉब आ जाएगी, परसों आ जाएगी, तरसों आ जाएगी। ब्रो, हर कोई इजी अप्लाई बटन दबा सकता है। कंपटीशन सोच रहे हो, 90% जनता वही बटन दबा रही है जो तुम दबा के आए हो, तो तुम्हारी जॉब कैसे लगेगी? सो लोग, स्मार्ट लोग क्या करते हैं, उस इजी अप्लाई के जस्ट 2 इंच नीचे एक रिक्रूटर का प्रोफाइल रहता है। एक कोल्ड टेम्पलेट बना के उस रिक्रूटर को भेज दो कि हाई, आई हैव अप्लाइड फॉर योर जॉब एंड दिस, ठीक है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ वर्ड विथ यू रिगार्डिंग द सेम बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ योर कंपनी. This is what I have noticed, Falana. Now, if you do the same with 10 companies, there are high chances of, like, except for those people who have just clicked on easy apply, तेरा chances are probability high है bro, right? This is the second way. And third way is very simple. जो उस कंपनी में पहले से काम कर रहा है उनसे रेफरल ले लो. एग्जाम्पल, अगर मैं बाइजूस में वर्क कर रहा होता, आफ्ताब, यू वुड हैव कम टू मी एंड टोल्ड यू हैव मेड अ ऑनलाइन रिलेशन विथ मी, you can get into that company. My first job was through LinkedIn. I worked with Divyanshu Damani, who happens to be a social media influencer. Currently वो Tag Mango एक startup है उसका, वो कि Y Combinator backed startup है. तो मैंने 6 महीने उसके साथ काम किया था. तो that I landed through LinkedIn only. मैं उसको रोज कोल्ड DMs करते रहता था. इवेंचुअली उसने बोला चला आजा भाई तू ऑफिस मिल ले मुझसे. इतना परेशान हो गया मुझसे. तो ही वॉज हैप्पी अबाउट इट. एंड ब्रो, पता है, एक लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, द मनी इज इन ऑलवेज इन द फॉलो अप. ओके, तो फॉलो अप नहीं लेगा ना, चीज़ें नहीं होगी. सोच, हमारा ये पॉडकास्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, हमारी बातें हुई, तूने मेरे को भेजा ये एड्रेस है, यहाँ होगा, वी हैड कॉन्वर्सेशन, मेरी लास्ट एक डील क्रैक हुई है. वो डील नहीं होती अगर मैं फॉलो अप नहीं लेता तो, या वो फॉलो अप नहीं लेते तो. सो वॉट वी डू जनरली, वी एक्सपेक्ट दैट एक बार में मेरे को रिवर्ट आ जाएगा, जो नहीं होता है. You have to constantly take follow-ups to make sure that something comes to you. That's what people don't understand. So this is the whole journey of LinkedIn. LinkedIn पे तेरे को अगर ध्यान, मैं अगर तेरे को बस LinkedIn के बारे में बताऊँ एक चीज़, take care of 5 C's always, which I always talk about. 5 C's, number one C is content. Content बनाओ, प्रोड्यूस करो. Content सबके पास है. तेरी स्टोरी, तेरी एक पिक्चर उठा डाल दे, उसके बारे में लिख, तेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ उसके बारे में लिख. सेकेंड इज कोलैबोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. तेरे फॉलोअर्स नहीं है, तू एक ऐसे इंसान के साथ कोलैबोरेट कर जिसके फॉलोअर्स है, तो उसकी जनता तेरे पास आ जाएगी. मैं बहुत ये करता हूँ. तीसरा, कमेंट. सोच, अगर तू अंकुर वारिकू के पोस्ट पे जाके अगर कमेंट कर रहा है एंड योर कमेंट इज वेरी इंसाइटफुल. अंकुर वारिकू के उस पोस्ट को 5000 लोग लाइक कर रहे हैं, बट योर कमेंट इज वेरी इंसाइटफुल, पीपल विल स्टार्ट कमिंग टू योर अकाउंट. This is the way you can gain follower. This is the third thing. Fourth thing is consistency. You cannot do it one day and just leave it the another day. You will be obsolete. हर दिन नए क्रिएटर्स आ रहे हैं ब्रो. यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे. अगर तूने बोला है कि मैं पॉडकास्ट हर ट्यूसडे रिलीज करूंगा, तेरे को करना पड़ेगा. तूने बोला है हर वेडनेसडे आएगी, तो आना पड़ेगा. कंसिस्टेंसी से लोगों के सबकॉन्शियस में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये तो आने वाला है पॉडकास्ट 7 बजे, मैं वेट करता हूँ. कीप इट इन ऑड टाइमिंग्स. मेरे से लोग पूछते हैं व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन. मैं बोला नो टाइम. तेरी ऑडियंस को तेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वेट करेगी 12 बजे भी वो आने का. एंड दैट्स व्हाट. बस एक ही टाइम पे हर दिन पोस्ट कर. और 5वां एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्रिएटिविटी. डोंट कॉपी एनीवन, बी क्रिएटिव अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. नई आइडियाज़ आ रहे, चैट जीपीटी से आइडिया ले, बट लिख खुद. चैट जीपीटी से लिखवा मत, तेरी क्रिएटिविटी किल हो जाएगी. So these are the 5 C's I always talk about, like content, then comment, collaboration, consistency and creativity. ये 5 चीज़ अगर आप में है, LinkedIn game can be very up. As simple as that. But I don't think so LinkedIn. I think बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी हो जाएगा ये. Same thing works. Valid है. अच्छा, from here I want to talk about, you know, एक तो होती है आपकी reach organic और एक होती है via advertisement. ठीक है. अब इसमें कुछ लोग स्मार्ट प्ले करते हैं और कुछ लोग हक देते हैं. अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ अंकुर वारिकू का, ठीक है, तो अंकुर वारिकू डिड गूगल एड्स, जिसने मतलब अगर देखा होगा स्टार्टिंग से उसको, तो व्हेन अंकुर वारिकू वाज न्यू, मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो खोलता था, आई जस्ट यूज्ड टू सी अंकुर वारिकू, एज सिंपल एज दैट, कि अंकुर वारिकू आ रहा है, आप मुझे अपनी जिंदगी के 10 दिन दीजिए एंड ऑल दैट स्टफ. दैट टैग लाइन मैंने उसको इतनी बार सुन लिया ना कि भाई मेरे को याद हो गया एकदम से. So that was the thing. Correct. तो यहाँ से I would like to ask you this कि ऑर्गेनिक रीच और आपकी जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रीच आती है, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों को यूज़ कैसे कर सकते हो?
तो जैसे मैं जो ब्रांडिंग करता हूँ लोगों के लिए, सो आई राइट फॉर फाउंडर्स एंड सीईओज, आई डू पर्सनल ब्रांडिंग फॉर देम, तो मैं ऑर्गेनिक करता हूँ, आई डू नॉट डू पेड गिग्स। और मेरा एक फ्रेंड है वो पेड गिग करता है, ठीक है, सो गूगल एड्स वगैरह। सो देख, पहले तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफर करता है। लाइक फेसबुक हैज़ बिकम ऑर्गेनिकली डेड, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ, आप अपना फेसबुक पे पोस्ट करके देख लो फोटो, आपको पता चलेगा ऑर्गेनिकली डेड हो चुका है फेसबुक, ठीक है। इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक रीच पोस्ट की डेड हो चुकी है, रील्स की बहुत हाई है, यू नो राइट। एक रील वायरल जाता है, आपके इतने फॉलोअर्स आ जाते, तो ऑर्गेनिक है, तो रील्स की ऑर्गेनिक रीच बहुत हाई है। ट्विटर की बात करो तो ट्विटर की ऑर्गेनिक रीच भी डेड कर दी है एलन मस्क ने ऑलमोस्ट, लाइक बट बहुत वायरल पोस्ट अगर जाता है तो आप जा सकते हो। और लिंक्डइन की ऑर्गेनिक रीच सबसे ज्यादा हाई है अभी, अगर आप रील के बाद देखोगे तो लिंक्डइन पे बहुत हाई चांसेस है आपके वायरल होने का। तो बेसिकली आफ्ताब होता यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनिक चीज़ों को आप तब कैसे यूज़ कर सकते हो। सिंपल, देर आर 3 ways टू डू इट। नंबर 1, वायरल। कैसे वायरल होंगे? आपको ट्रेंड फॉलो करना है, जैसे चैट जीपीटी के बारे में बात कर लो, ठीक है, इंडिया में और क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर लो, ट्रेंड फॉलो करोगे वायरल हो जाओगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, फ्लैटहेड का एक फाउंडर आया था, ठीक है, गणेश बालाकृष्णन, तो उसने एक लाइन बोली थी कि बीवी कमाती है, मैं उड़ाता हूँ। तो एक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर ने उस लाइन को हुक यूज़ करके एक पोस्ट बना दिया, और उसकी पोस्ट इतनी वायरल चली गई कि उसके 10,000 फॉलोअर ऑलमोस्ट आ गए। सो जो कंटेंट चल रहा है मार्केट में उसके बारे में लिखोगे तो ऑर्गेनिक रीच बहुत बढ़ जाएगी। दिस इज नंबर 1 वे, ठीक है। सेकेंड वे टू इंक्रीज द ऑर्गेनिक रीच इज कि आप वैल्यू एडिंग कंटेंट दो, लोगों को एक सीरीज बना के दो कि मैं 10 दिन में नेटवर्किंग के बारे में 10 चीज पोस्ट करूंगा, लोग वेट करेंगे, ऑर्गेनिकली लोग आपके बढ़ते रहेंगे। एक सीरीज बना दो, जैसे आपकी ऑडियो पॉडकास्ट है वो हर दिन आ रही है या हर वीक आ रही है, सो उससे ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा बढ़ती है। दिस इज सेकेंड वे। एंड थर्ड वे टू ऑर्गेनिकली रीच पीपल इज कोलैबोरेशन, दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट, कि जो लोग ऑर्गेनिकली या जिनके फॉलोअर बेस ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, टेक आउट दैट टाइम एंड एनर्जी टू बिकम सो पावरफुल दैट वो लोग आपसे कोलैबोरेट करने को तैयार हो जाए, ठीक है। सो ये हो गया ऑर्गेनिक के बारे में। अब नॉन ऑर्गेनिक यानी कि पेड मार्केटिंग जो होती है, पेड मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप क्लिक थ्रू रेट देखते हो, ठीक है, क्लिक रेट देखते हो, कन्वर्जन रेट देखते हो कि क्या चल रहा है। तो वो बेसिकली क्या होता है, जो अंकुर वारिको ने किया था, तो अंकुर वारिको ने ये बात बताई थी कि उसका ऑलमोस्ट 1.75 है वो रेट, मतलब वो अगर 1 रुपये खर्च करता है तो उससे उसके 1 रुपये 75 पैसे आते हैं। तो अगर वो 1 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहा है, जिससे तुम देख रहे हो, तो उसकी रेवेन्यू 1 करोड़ 75 लाख आ रही है, तो 75 लाख प्रॉफिट है ना ब्रो। ये फायदा होता था। तो इसीलिए अंकुर वारिको के इतने एड्स आपको दिखते हैं, क्योंकि बहुत लोग उसके कोर्स नहीं लेते होंगे वो टाइम वाला, बट जो लोग ले लेते हैं वो वही लोग होते हैं बेसिकली, जहां से उसके पैसे वैसे जब आना चालू हो गए, एवरीथिंग बिकम सो मच बेटर। दिस इज हाउ इट इज। तो पेड मार्केटिंग मेरे हिसाब से मैंने आज तक यूज की नहीं है, ना ही मैं करना चाहता हूँ, बट अगर आप कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हो तो पेड मार्केटिंग आपको करनी चाहिए। क्योंकि फिर क्या है ना, आप अपना मतलब बोल सकते हो कि जब रिटर्न देखोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन द एड स्पेंड, जिसको बोलते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो जब देखोगे अगर वो पॉजिटिव रहा ना आपका, तो यू आर गुड टू गो। आप हर दिन, आपको क्या दिक्कत है 1 करोड़ रुपए खर्च करने में, जब आपको 1 करोड़ 75 लाख आ रहे हैं महीने का, 75 लाख रुपए प्रॉफिट जब आ रहा है, तो इवेंचुअली वो आपका मनी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। एंड दैट्स व्हाट अंकुर वारिको एंड ऑल दीज पीपल यू सी इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन। वो सारे लोग यही करते हैं। एंड मेरा दोस्त एक काम करता है इस फील्ड में, तो वो बहुत डीपली पता है इस फील्ड के बारे में, बट मैं प्रेफर नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक। आई एम मोर ऑफ ऑर्गेनिक गाय, सो आई एम लाइक ऑर्गेनिकली चीज़ों को बढ़ाएंगे। पर डोंट यू थिंक अगर मैं सारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर लूँ, गूगल, तुम्हारा कोरा एडवर्टाइजिंग भी है, लिंक्डइन भी है, फेसबुक वगैरह तो सब बीच में आ ही जाता है, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, अगर मैं सब कुछ यूज़ कर लूँ, एवरीथिंग, एंड आई कलेक्टिवली टारगेट वन थिंग, लेट इट बी वन वेबसाइट, लेट इट बी वन प्लेटफॉर्म, डोंट यू थिंक आई एम गोइंग टू गेट अ रीच या आई एम गोइंग टू गेट एन ऑडियंस? रीच आएगा, ऑडियंस आएगा, बट तब तक आएगा ना जब तक आप पैसे खर्च कर रहे हो। अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है तो इवेंचुअली लोग नहीं आएंगे। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी के सिंपल सा चीज़ आप सोच लो कि आज के टाइम पे मेरे को अंकुर वारिको के कोर्स में, टाइम वाला जो कोर्स है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को उसमें कुछ खास वैल्यू दिखी नहीं, बट इवेंचुअली अगर उसका कोर्स और बेटर होता तो उसकी सेल्स और बेटर होती। तो आप जो इस चीज़ की बात कर रहे हो, पेड चीज़ की, कल को मैं आपके पास आता हूँ और आपको आके बोलता हूँ कि आप
कम्बूचा ब्रांड था, रेबेका सूद का एग्जाम्पल ले लो, कम्बूचा की ड्रिंक आप खरीद लो, या नॉर्मली मैं शॉप में तेरे से चलता हूँ, यार चल कम्बूचा वाली ड्रिंक पीते हैं। सो द थिंग इज़ के यार जब मैं आपको ऑर्गेनिकली कोई चीज़ रेफ़र कर रहा हूँ ना, मैं आके आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा बिलीव करोगे। बट उसमें जब पेड लिखा हुआ जाता है ना, पेड प्रमोशन है, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें झोल है। सो आपकी वो 10 टू बिलीव कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आजकल लिखाने लग गया है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। गवर्नमेंट धीरे धीरे रेगुलेट कर रही है ये चीज़। आपको पता होगा कि फाइनेंस जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको धीरे धीरे बैन किया जा रहा है कि आप ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं कर सकते फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अगर आपके इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स है। और वो होगा इवेंचुअली, लोगों के पैसे डूब रहे इस चक्कर में ब्रो। लाइक बहुत पहले एक स्कैम आया था जिसमें अंकुर वारिकू ने एक पर्टिकुलर कंपनी प्रमोट की थी, वो कंपनी बंद हो गई। दैट वाज अ क्रिप्टो का एक प्लेटफॉर्म था। तो अंकुर वारिकू को भी नहीं पता था वो बंद हो जाएगी, बट पैसे के लालच में उन्होंने भी किया ना दोस्त। तो ये सिंपल चीज़ होती है। तो मेरे को यही चीज़ बिलीव होती है कि अल्टीमेटली पेड से हमेशा ऑर्गेनिक बेटर है। ठीक है, पेड मार्केटिंग में आपने कुछ चला दिया, कैंपेन सब चला दिया, दैट इज़ गुड, बट वो आपका बहुत बड़ा अगर बिजनेस आप बनाना चाह रहे हो एक प्रॉपर, तो आप पेड चलाओ। आपके पास पैसे भी होने चाहिए ना इनिशियली। अब आप लोन लेके पेड चला रहे हो, वो वर्क नहीं किया तो आपके ऊपर और लोड बढ़ेगा। इवेंचुअली इंडियन पेरेंट्स इतना नहीं ये कंटेंट इंडस्ट्री को समझ पाते। आप समझो आप इंडिया में हो ब्रो, यू कैन नॉट कन्विंस योर। मेरे पेरेंट्स तो हर दिन मेरे से ये पूछते कर क्या रहा है लाइफ में चाहे मतलब कितना ही अच्छा कर दो, उनको ये है कि एक अच्छा जॉब कर ले, सेटल हो जा, शादी कर ले। आई एम लाइक मम्मी दिस इज वॉट आई लव। पैसे तो आ रहे हैं ना इवेंचुअली। तो वो स्टेबिलिटी इंडियन पेरेंट्स मांगते हैं। सो वो डिफरेंस हो जाती है आफ्ताब, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो पेड मार्केटिंग की मैं कभी भी बात करता हूँ तो पेड मार्केटिंग इज गुड when you have the vision clear, you have 1 product, 2 product, 3 product to sell. People have done a lot good in it, but eventually to start with, make organic brand. That is completely fine. Now whatever you are doing organically, right? अभी तो भाई YouTube में आप डालोगे, सब करोगे organically है। बाद में कल को आपकी पॉडकास्ट बहुत प्यारी हो गई, बहुत ज़्यादा बेटर और ज़्यादा क्वालिटी इसकी इंक्रीज हुई, बहुत कुछ आपने इंप्रूव किया, तो आप उसके पेड एड चलाओगे सो दैट लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ चल रहा है। एक देयर इज दिस गाय कॉल्ड वरुण, मेरे को उसका पूरा नाम नहीं पता, वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट बनाया है। उसके सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर्स है अभी यूट्यूब में, 300K प्लस है इंस्टाग्राम पे, बट मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट बनाता है। मतलब उसका जब बूम करेगा ना, आप देखोगे कंपाउंड करेगा ना, ये 15,000 ये 15 लाख 15 मिलियन पहुँच जाएगा। इट्स लाइक सुपर गुड पॉडकास्ट ही इज मेकिंग राइट नाउ। However, Yogesh, I think we had a Yeah, very long conversation. conversation. तो Loved it. You loved it? Yeah bro, चलो, मज़ा आ गया। अभी लास्ट में एक चीज़ पूछते हैं, वैसे तो ये सबको पूछते हैं, हाँ लेकिन यार फिर भी ना थोड़ा सा देखते हैं इसमें। मेरे को लगता है इसमें ना लेयर्स बहुत होगी, बहुत लेयरिंग वाला क्वेश्चन है ये कि बेसिकली व्हाट इज़ योर विजन राइट नाउ फॉर लाइफ। मतलब तुम क्या देखते हो, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बिल्ड करना है, और कौन सी जो तुम्हारी वो डेमोग्राफ है जो जिसको तुम्हें टारगेट करना है। मेरा सिंपल विजन लाइफ को लेके ये है आफ्ताब, दैट आई वांट टू डिज़ाइन अ लाइफ विच इज़ अ नोमैडिक लाइफ स्टाइल। मैं कहीं नोमैडिक? हाँ नोमैडिक, मतलब कहीं एक जगह नहीं रुकना। मतलब आपका कोई घर नहीं है, नोमैड का मतलब होता है कि आपका कोई घर बार नहीं है। तो मेरे को ऐसा लाइफ स्टाइल जीना है जहाँ पर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। सो बेसिकली आई वांट टू बिकम अ डिजिटल नोमैड, ठीक है। और मेरे को ऐसे बिजनेसेस खड़े करने हैं जो बिजनेसेस मैं इंडिया और वर्ल्ड के कोई भी कोने से कर पाऊँ, ठीक है। डेमोग्राफी की अगर बात करते हैं तो मेरे को टारगेट करना है कॉलेज स्टूडेंट्स को और जो फ्रेशर्स है कॉर्पोरेट्स वाले। इसका अब मैं बता रहा हूँ, मैं गलत डेमोग्राफी टारगेट कर रहा हूँ, फ्रैंकली मैं आपको बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ क्यों। ये डेमोग्राफी पैसे नहीं देती है। कॉलेज स्टूडेंट्स कितना ही पैसा दे देंगे, उतना थोड़ी दे पाएंगे जितने एक भाई एक्सपीरियंस्ड कॉर्पोरेट वाले दे देंगे। बट मेरा इनिशियल एक ये मोरल ग्राउंड इस पे ये है कि जब मैं छोटा था तो मेरे को कोई मेंटोर करने नहीं आया था लाइफ में क्या करना है, वो मेंटोर मैं बनना चाहता हूँ उनके लिए। सो साइड बाय साइड एक बिजनेस चलाना है जिससे मेरी एक डिसेंट इनकम आए कि मैं इंडिया वर्ल्ड घूम पाऊँ। मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, आई एम नॉट समवन जिसको करोड़ और वो अंबानी वाला पैसा चाहिए, आई एम नॉट ऑफ दैट माइंडसेट। और मेरे को साथ ही साथ वो हीरो बनना है इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट आई एम डिलीवरिंग, इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू आई एम एडिंग टू पीपल। तो मैं बहुत क्लियर हूँ, कोई लेयर नहीं, एज सिंपल एज दैट। एक सिंपल सी लाइफ जहाँ पर मैं घूम सकूँ और इतने डिसेंट मेरे पास पैसे हो जिससे मैं बेसिकली पैसे कमा के आगे स्पेंड कर सकूँ। सिंपल। एनीथिंग स्पेसिफिक, मतलब नॉट अबाउट सेटलिंग अप या फिर यू नो गेटिंग मैरिड? आई डोंट वांट टू गेट मैरिड
frankly. Like I have had a relationship of 8 years and we broke, and the girl right now is with someone else. Like that was a breaking moment for me. So eventually I got to know about that 10 days ago. That 4 महीने से पहले उसका relationship चालू हो गया वापस. I was so broken that 8-year relationship you get into another relationship. So I was like ठीक है, let it be. And then eventually I'm not feeling like that I'll fall in love ever again. So I'm like ठीक है, let it be. I'll just be like this, go with the flow. But my advice was to the 20s. I'm like, don't fall in love right now. Explore life. Okay. There will be a time you will need a good partner. There are times, bro, I also feel very lonely कि एक partner होना चाहिए, सब होना चाहिए. But eventually 20s is the time. I just posted today and the post got a good traction कि 20s is your trial period. असली सब्सक्रिप्शन 30 साल के बाद शुरू होगा. तो ये ट्रायल पीरियड को जम के यूज़ करो, और जब 30 के होगे ना तो उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन चालू होगा. तब आपको हर पल ऐसा लगेगा कि आपके पैसे खर्च हो रहे. हर पल आपको लगेगा कि यार कुछ बहुत ही ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ, या शायद ये पल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. धीरे धीरे वो लाइफ में लगने लग जाएगा. तो अभी आप 20s में हो, 20s को एक्सप्लोर करो, डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल, और नई चीज़ें सीखो, अपस्किल करो. AI अगर आप सीख लेते हो, nobody can beat you. Like learn the tools and everything, AI tools, graphic designing, whatsoever the things that generally robots cannot do, and you can be better at it. ये सब चीज़ कर लो, मैं बता रहा हूँ, nobody will be able to beat you in the future. That's what the reality is. I really hope you enjoyed this conversation. I loved it, Aftab, and I think so. I only told Akriti when I saw your podcast कि ठीक है, have a word with him. Thank you so much for this conversation, Yogesh. I hope you enjoyed this, and I really had a great time. I hope you did too. And it was really great hosting you. I loved it, Aftab. Thank you for having me. I think so you asked pretty good questions, and I think so you're doing a great job in terms of what you're doing, and even like inspiring millennials at the age you are right now. I think so I was not great enough to actually do these things, so kudos to you, and all the very best for your future projects. Thank you so much for being with us.